सिखाए भाव को, शिक्षा दे व्यवहार, दोनों साथ हो जाए जहाँ विकसित हो संसार। Teaching and acting, both are twin arts, both demand presence, passion and power to make others believe in possibility. One shapes the mind and other does the soul, but both awaken truth. With the same thoughts in mind, I would like to extend a warm welcome and a very good morning to today's guest, Mr. Rakesh Narayan Das Modi sir, Associate Professor, Department of Dramatics at MS University, Vadodara. Dr. Trilok Singh Mehra sir, Assistant Professor, Department of Dramatics at MS University, Vadodara. Our Managing Trustee Shah sir, Principal Trustee Ramesh ma'am, Founder friend Sangeeta ma'am, Campus Director Prakash Mehta sir, all the sectional heads, senior teachers present here, and my dear friends. As we know, prayer is the strength of soul and beauty of every beginning. So I warmly welcome Dhanashri ma'am to lead us through prayer. Please ma'am. Re ga ma pa ma ga re ga, re ga ma pa ma ga re sa. हम पर करो कृपा, हम पर करो कृपा, तेरी शरण में आए हैं हम, तेरी शरण में आए हैं हम पर करो कृपा, हम पर करो कृपा। सद्बुद्धि ऐसे हमें दो वो भगवन, जिससे करे हम भला, सुख शांति सबके जीवन में रहे और संकटे सदा रहे टला। ध्यान रहे प्रभु पल पल तुम्हारा, ध्यान रहे प्रभु पल पल तुम्हारा, तुमसे न हो हम जुदा, हम पर करो कृपा, हम पर करो कृपा। तुमने दिया है बहुत कुछ दिया है, एहसास इसका करे। तुमने दिया है बहुत कुछ दिया है, एहसास इसका करे। मन कर्म वाले पे संयम रखे, सदुपयोग इनका करे। तुम्हारी कृपा हो तो फूलों से महके, तुम्हारी कृपा हो तो फूलों से महके, गुलशन बने धारा। हम पर करो कृपा, हम पर करो कृपा, तेरी शरण में आए हैं हम, तेरी शरण में आए हैं हम पर करो कृपा, हम पर करो कृपा, हम पर करो कृपा। With serenity. Thank you ma'am for such a divine start. Drama plays a vital role in lives of teachers as well as students. Drama also helps us in enhancing expressions, creativity, confidence. It fosters empathy, improves communication skills, and makes learning more engaging and experiential. So, it is with great pride and heartfelt enthusiasm that we welcome two distinguished stalwarts of performing arts to our today's teachers training program. Individuals whose dedication to theatre and education
continues to inspire generations of learners, artists and educators alike. Here we have with us Dr. Rakesh Narayan Das Modi sir, a name synonymous with excellence in theatre education, serving for over 24 years in Department of Dramatics at the Faculty of Performing Arts. Sir is currently pursuing his PhD in the area of theatre, literature and performance. His contribution to the dramatic art spans both academia and performance, having acted in more than 40 full-length plays and over 30 one-act plays, along with numerous appearances in film, television, documentary, radio and teleplays. Sir is a proud recipient of A-grade panel artist designation from Doordarshan Ahmedabad and B-high grade from Prasar Bharati, Vadodara. Professor Modi currently imparts knowledge in subjects such as theatre literature, voice and speech, stagecraft at both undergraduate and postgraduate levels, combining deep scholarly insight and profound love for the stage. Now, I request our admin head, Mr. Pinakin Patel sir, to welcome sir. As we know, our former admin head, Mr. Praveen C. Raj sir, he demised on 24th May 2021 during Corona pandemic. So, Pinakin sir took the charge after him and he is now leading our administration. Now, it's the time to introduce the second pillar of today's program, Dr. Trilok Singh Mehra sir, a seasoned dramatics professional whose work exemplifies the perfect harmony between tradition and innovation. With PhD in dramatics and over 15 years of impactful experience in teaching, directing and producing theatres, Dr. Mehra is known for his visionary approach to performance and pedagogy. Sir was honored as a young director by the Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy in 2006-07. His mission is to nurture emerging talent and contribute meaningfully to field of dramatics, and he continues to shape the future of Indian theatre both on academic and artistic front. So I would like to request Mr. Prakash Mehta sir, our campus director, to welcome sir. Please sir. So much sir for the honor. Without taking much of the time, I would like to hand over this session to Dr. Modi sir to enlighten us. गुड मॉर्निंग। जब आप सर बोलते हो ना तो मुझे थोड़ा सा घबराहट हो जाती है। बच्चे बोले वो बात अच्छी है, लेकिन टीचर को सर कैसे कहेंगे। सबसे पहले मैं एमएटी स्कूल का, प्रकाशवाणी का, मामा का, इस पूरे परिवार का मैं आभार क्योंकि मैं देखो मामा बोला मैंने, सो इसलिए कि जो काम हम रंगमंच के लिए करते हैं वो स्कूल में जाकर टीचर्स के साथ इसको शेयर कैसे करें, हमारे एक्सप्रेशन,
हमारा वॉइस एंड स्पीच, हमारा क्लास के ऊपर कंट्रोल, वो और रंगमंच में क्या फर्क है? वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। ड्रामा इन एजुकेशन, ड्रामा किसे कहते हैं हम? ये 2 वे होगा, 1 वे नहीं होगा। यहाँ प्रेक्षक का रिस्पॉन्स आवश्यक है। सो एजुकेशन तो हम समझते हैं कि पढ़ाना है, चाहे हम स्कूल में टेक्स्ट बुक से पढ़ाएं, लेकिन कला को, आर्ट को हम कैसे पढ़ाएं? सृजनात्मकता जो है उसे कैसे पढ़ा सकते हैं? तो जिसे हम कहते हैं कि ड्रामा है, तो ड्रामा किसे कहते हैं? आप में से कोई भी बता सकता है। किसी भी चीज को परफॉर्म कर किसी के अपनी फीलिंग्स दूसरे तक पहुंचाना। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो कैसा होता है, क्लास में भी ऐसा होता है ना, जब आप सवाल पूछते हैं तो शायद ही एक बच्चा पहले जवाब देता है, लेकिन जैसे एक बच्चा जवाब देता है ना, उसके बाद तुरंत बाकी के सब खड़े हो जाते हैं। माने सारी चीजें हमारे अंदर है। सो सबसे पहली चीज क्या होती है? पहली चीज होती है इनिबिशंस। हमारे मन में तुरंत रिप्लाई अगर कुछ करना है तो हमारा मन जो है ना, वो हमें रोक कर रखता है कि शायद मैं सही हूं या गलत हूं। लेकिन वो ड्रामा नहीं है। ड्रामा क्या है बेसिकली? वैसे देखा जाए तो वो एक सिंपली साहित्य का स्वरूप है। जैसे आप कविता माने पोएट्री हम पढ़ते हैं, किसी भी प्रकार का साहित्य पढ़े, या लेकिन नाटक जो है वो एक अलग प्रकार का साहित्य का स्वरूप है कि जब तक वो मंच पर खेला नहीं जाता तब तक वो साहित्य का स्वरूप पूर्ण नहीं होता। अगर आप बहुत अच्छा पेंटिंग बनाते हैं और वो पेंटिंग अगर आप आपके ड्राइंग रूम में या आपके रूम में अगर वो आप रखते हैं तो उससे क्या होगा? नहीं चलेगा। किसको पता चलेगा? जो लोग घर में है उनको पता चलेगा कि आप आर्ट को समझते हैं या आप आर्ट करना जानते हैं। लेकिन वो वहां तक सीमित रहता है। कुछ लोग होंगे जो शायद इंजीनियर भी हैं, फिर भी कविता बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब तक वो कविता उसके भावक तक नहीं पहुंचती, आपकी किताब में ही रहेगी, तो आप कितने अच्छे साहित्यकार या कवि हैं वो कैसे पता चलेगा? मीन्स ड्रामा जो है वो अगर टेक्स्ट बुक में रहेगा या पन्नों के अंदर दर्ज रहेगा तो वो अपने आप में सिर्फ एक साहित्य कृति बनकर रह जाती है। तो जरूरत क्या है? जैसे मैम ने बताया कि ड्रामा क्या है? ड्रामा जिसे कहते हैं हम नाटक, राइट? तो नाटक शब्द जो है ना, आज वो इतना नीचे आ गया है कि अगर बच्चा घर में या 2 बच्चे मिलकर झगड़ा करते हैं ना, तो भी हम कहते हैं कि अरे बोलो वो मोटो नाटक करे छे। नाटक मीन्स व्हाट? नाटक मीन्स कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। चाहे वो एक पात्र का खुद के साथ हो, एक पात्र का दूसरे के साथ संघर्ष हो, और वो संघर्ष को मंच पर लाना और वो संघर्ष को देखना, वो नाटक। विदाउट कॉन्फ्लिक्ट हमें मजा नहीं आता। रास्ते पर अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया तो हमारी गाड़ी या स्कूटर की ब्रेक तुरंत लग जाएगी। वहां पर हम देखेंगे कि क्या हो क्या रहा है, वो अनायास हो जाता है, हम रोकना नहीं चाहते, फिर भी किसी न किसी प्रकार का वो कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन पर्टिकुलरली थिएटर,
जिसे जहाँ पर नाटक जो है वो हम खेलते हैं वो रंगमंच पर। अब टीचर्स की भूमिका और कलाकार की भूमिका दोनों एक सी रहती है। जैसे हमारे पास कई बार इतने सारे नाटक आते हैं, जब हम उस नाटक को परफॉर्म करने का प्रयत्न करते हैं तो सबसे बड़ा सवाल उठता है हमारे मन में कि इस नाटक के कैरेक्टर को समझा कैसे जाए। मैं अगर खुद समझ लेता हूं तो वो बात ठीक है, टीचर उस सब्जेक्ट को अच्छे से समझ लेता है तो वो बात ठीक है, वहां तक वो बात हो सकती है। लेकिन उससे आगे चलकर जो बात होती है वो ये है कि इस पात्र की भावनाओं को, इमोशंस को कम्युनिकेट करना। जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होती, टीचर्स कितनी अच्छी भी तैयारी कर कर आए, लेकिन उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट वो अगर बच्चों के मन में वो कंप्लीट नहीं होता है या उन्हें समझ में नहीं आता है तो क्या होगा? तो जैसे आप विषय के बारे में जितनी तैयारी करते हैं उससे उसी प्रकार से हमें किसी भी कैरेक्टर को डाइजेस्ट करने के लिए या उसके सोल तक पहुंचने के लिए बड़ा लंबा रास्ता हमें तय करना होता है, और वो रास्ता पहले से थ्योरी में नहीं बताया गया है। किसी भी किरदार को प्रस्तुत करने के लिए वहां पर बताया नहीं जाता, लेकिन उस कैरेक्टर को समझते समझते उसकी भावनाओं को, उसके इमोशंस को, उसके जेस्चर पोस्चर्स को, उसके पूरे कैरेक्टर को हम जब कैरेक्टराइजेशन करते हैं तब समझ में आता है कि ये चरित्र कैसे निर्माण कर सकते हैं। तो बेसिकली टीचर भी क्लास में आता है, उसके पास कंटेंट है, सब कुछ है, लेकिन कभी कभार किस चीज की कमी रह जाती है? वो इस चीज की कमी रह जाती है कि आपकी आवाज शायद उन तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। आपके एक्सप्रेशन, आपके जेस्चर पोस्चर्स, माने वो आपका एक चरित्र है जो घर से अलग है। आप लोग भी सारे लोग एक्टर्स हैं, आप समझ लीजिए। सुबह से लेकर यहाँ तक जो पहुंचे ना आप, ये छठा सातवां कैरेक्टर आप निभा रहे हैं। हाँ, घर में जब बच्चों के साथ या घर के लोगों के साथ जो व्यवहार कर रहे थे वो अभी यहाँ बैठकर नहीं कर रहे। कितने अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आप यहाँ पर बैठे हो ना। कभी कभार ऐसा मौका मिलता है कि हम सामने बैठे और हम किसी को सुने, लेकिन वो किरदार आप वो घर पर करके आए ना, तब सोचिए कि जब आप रेडी होकर बाहर निकले ना, आपने बहुत इजीली उस कैरेक्टर को वहां पर छोड़ दिया था। वो हम देखते नहीं है उसको, क्योंकि वो हमारी जिंदगी का वो भाग है, लेकिन हम उस प्रकार से नाटक के आने वाले हर कैरेक्टर्स को किस प्रकार से, कौन से सीन के अंदर उसे कैसे लेकर जाना है, वो हम तय करते हैं। दो चीजें नाटक में, तीन चीजें बड़ी जरूरी है। जब रंगमंच पर एक्टर किसी भी कैरेक्टर को लेकर आता है तो हमारे पास तीन उसके बड़े महत्व के टूल होते हैं। नंबर 1, बॉडी, वॉइस एंड माइंड। कोई भी कैरेक्टर जब हम करेंगे, ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब ये एक्टर के लिए जरूरी नहीं है, टीचर वो है, मेरी दृष्टि से वो बहुत बड़ा एक्टर है। आप आधे घंटे के क्लास में या 1 आवर के क्लास में, 1 घंटे की क्लास में आपका कंट्रोल क्लास के ऊपर विथ कंटेंट, विथ एंटरटेनमेंट और सब्जेक्ट को बड़ी सरलता से उस टॉपिक को समझाने के लिए जरूरी क्या? नॉट ओनली माइंड। कुछ लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है ना, वो बात को अच्छे से समझ लेते हैं, लेकिन उस बात को कम्युनिकेट करने के लिए अगर कहा जाए तो क्या होगा?
शायद उसका उनका वॉइस प्रोजेक्शन जो है वो कम पड़ेगा। ठीक है, मैं जब आपके सामने अभी कर रहा हूं, मैं बिल्कुल एक्टिंग कर रहा हूं। मैं यस रियली मुझे पता है कि मैं क्यों यहां से वहां मूव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आपके ऊपर जहां तक मैं बोलता रहूं, आप मुझे देखते रहे और मुझे सुनते रहे। ये सीधा सा मकसद मेरा बहुत क्लियर है। गेट इट? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि क्या होता है क्लासरूम में। शायद किसी को अनुभव हुआ होगा, बच्चा बोलता है कि मैम आवाज नहीं सुनाई दे रही है, मुझे समझ में नहीं आया क्या कह रहे हैं। व्हाई? सो लास्ट में जो लोग बैठे हैं ना, उनके ऊपर भी अगर मुझे कंट्रोल रखना है, उनका ध्यान मेरी ओर से नहीं हटाना है, तो सबसे पहला आपका सिग्नेचर क्या है? आपका वॉइस आपका सिग्नेचर है। उसको अगर आप सिग्नेचर बनाते हो तो विदाउट एनी मूवमेंट, हम कहा जब नाटक में काम करते हैं 1000 का ऑडियंस है और हम मंच पर है, जहां आप बैठे हैं वहां पर लाइट्स नहीं होती है, फिर भी हम उन 1000 लोगों को कम से कम उसमें से 800 लोगों को तो कंट्रोल कर सकते ना। उन 800 लोगों को 800 लोगों को कंट्रोल कैसे करेंगे हम? वो भी विदाउट एनी पार्टिसिपेशन? नॉट पॉसिबल। लेकिन उसके लिए वहां पर क्या करते हैं हम? एक घटना जो है ना वो तैयार करते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में आने वाला जो लेसन होगा, जो भी टॉपिक है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चाहे फिर वो मैथ्स का हो। मे बी मैं इस बात से सहमत, माने आप हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते, मेरा ये सुझाव नहीं है कि आपको उस प्रकार से देखना है, लेकिन मैं थिएटर को कैसे देखता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे नाटक होते हैं जहां पर मैथ्स की तरह बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप होती है। वो इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हम, लेकिन थ्रू इमोशन उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस टॉपिक को अगर आप अलग दृष्टि से देखें, उसे क्रिएटिव वे में बड़ी सरलता से समझाना है, तो तीन चीजें कैसे काम करती हैं। नंबर 1, बॉडी, वॉइस एंड माइंड। रंगमंच इतने सालों के अनुभव के बाद समझ में आया है, ज्यादातर हम काम करते हैं, तब मैं साइंस का बहुत अच्छा विद्यार्थी नहीं था, मैथ्स का बहुत अच्छा विद्यार्थी बिल्कुल ही नहीं था, मामा नोज वेरी वेल। लेकिन ये नाटक में आने वाले किरदार जो है ना, वो मुझे बहुत सारी चीजें समझा गया है। सो बॉडी, वॉइस एंड माइंड, उस माइंड को हमें उस प्रकार से तैयार करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई टीचिंग जो है ना वो फैशन नहीं है, वो पैशन है। फॉर मी थिएटर वो फैशन नहीं है, वो पैशन है। और जब तक पैशन रहेगी ना, आपके अंदर का फायर जो रहेगा ना, रंगमंच आपके साथ चलता है। जिस दिन आपके अंदर का फायर खत्म हो गया, इसलिए हमारे गुरु हमें कहा करते थे कि जब तक आप कला को, आर्ट को जितना पकड़ कर रखेंगे, कला आपके साथ रहेगी। जिस दिन आपने आर्ट को छोड़ दिया, आर्ट दूसरे दिन आपको छोड़ देगी। एजुकेशन का सीधा सा मतलब यही, जितना हम एजुकेशन को पकड़ के रखेंगे, एजुकेशन हमारे साथ रहेगा। उसके लिए जो जरूरी है वो सारी चीजों को हमें पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरा जो टेक्स्ट बुक है वो अगर वो मुझे आ गया तो अब मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी एक कैरेक्टर को पढ़ने के लिए, तैयार करने के लिए हमें बहुत सारी जिंदगियों से गुजरना पड़ता है। सो बॉडी, वॉइस
चीजें हैं, चाहे वो शिक्षक के लिए हो या किसी एक्टर के लिए हो, उसे उसके ऊपर काम करना अति आवश्यक है। अदरवाइज कितना भी आप करें, लेकिन आप ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाओगे। जैसे मैंने कई बार सुना है क्लास में क्या होता है कि મારી અવાજ મારો અવાજ તમને સંભળાય છે છેલ્લે સુધી? કઈ જરૂર લાગતી નથી ને? ऐसा क्यों हो रहा है? बोलिए। नो नो रिस्पॉन्स। वॉइस मॉड्यूलेशन चेक करिए, वहाँ से आवाज जाती है कि नहीं। वेरी करेक्ट। फिर जब आप लास्ट रो में बैठे हैं, मैं आधे घंटे तक कुछ बोलता रहूंगा, धीरे 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 मेरी आवाज जो है वो कम होती जाएगी। फिर आप लोगों के मन की स्थिति क्या होगी? किसी को लगेगा ना कि दरवाजा खोल के पानी पी के वापस आते हैं। Why? क्यों? यस, माने 1 घंटे तक अगर उनको एंगेज रखना है, एंगेज इन गुड सेंस, अगर एंगेज रखना है तो आपको आपके बॉडी, आपका वॉइस एंड आपका माइंड, इसके ऊपर आपको कंट्रोल करना ही होगा, या उस क्वालिटी को समझना होगा कि व्हाट इज योर वॉइस क्वालिटी। कुछ क्लिप्स हम बाद में आपको बताएंगे। सो सबसे पहले जरूरी क्या होता है? वॉइस। वो बात आपको समझ में आ गई है। कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, 2 लोग मंच पर आएंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ एक्सरसाइज करवाना थोड़ा कठिन होगा। 2 लोग चाहिए मुझे। हम इसे मिरर गेम कहते हैं। मिरर गेम, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, उस 2 ऑब्जेक्ट में से एक जो है वो मिरर होगा और दूसरा सामने देखने वाला होगा। मिरर में हम समझते हैं कि वही रिप्लिका हमें सामने हमारा ही प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, लेकिन वो करने से क्या होता है वो इन दोनों के पास से हम बाद में जानेंगे। अब सेंटर में आ जाइए। सेंटर में इसीलिए रहना चाहिए कि सबका ध्यान जो है ना वो यहाँ पर है, इसीलिए। जो कुछ भी करेंगे बिल्कुल स्लोली, कोई डायलॉग नहीं बोलना है, कुछ नहीं करना है। जैसे आप मिरर में देखते हो तो मिरर इस प्रकार से उस बॉडी को आप मिरर रेडी। स्लोली ऑब्जर्व करते जाइए आप। हो गया? अच्छा, क्या लगा आपको? मजा आता है ना दूसरे को जब हम ऑब्जर्व करते हैं ना, तो बहुत सारी चीजें फटाफट फटाफट निकलती है। हाँ, तो भी बोलिए, करेक्ट बोलिए। क्या क्या एक्टिविटीज थी इसमें? करेक्ट। तो क्या चीज उसमें नहीं थी? वॉइस तो हमने रखा ही नहीं है, मैंने बोला ही नहीं है वॉइस नहीं होगा। उन्होंने जो जिस साइड में किया मुझे उनके साइड में काम तो करना है। सर उन्होंने मोनो एक्ट किया। हाँ, मोनो एक्ट किया।
नहीं, क्या किया वो चीज नहीं है। ये डायलॉग नहीं था इसमें। पहली बात ये है कि जब आप आईने में देखते हैं अपने आप को तो क्या होता है, लेकिन यहाँ पर तो दो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, आईना तो नहीं है, लेकिन क्या चीज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। facial expression, कोऑर्डिनेशन। अंडरस्टैंड? कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नो, कीन ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस। तो टीचर्स को भी ये करना पड़ेगा ना। सो कोऑर्डिनेशन नहीं था, राइट? तो कोऑर्डिनेशन हो सकता है, मुझे लगता है हो सकता है। कैसे करेंगे? फिर से एक बार, आप वहां से यहाँ आए, ठीक है, माने मिरर यहीं पर है, ऐसा समझिए, यहीं पर रहे, ये ऑब्जेक्ट चलकर यहाँ से वहां तक जाता है, चाहिए। मिरर ऑब्जर्व अच्छे से करा था। वन बाय वन आप हाथ ऊपर करें, मैं बोल दूंगा किसको बोलना है। बेटरली और शी इज ऑल्सो डूइंग स्लोली। जो एक्ट किया वो कंपैरेटिवली पहले से स्लो किया। स्लो किया, समझ में आया? ये एक्सरसाइज से एक फायदा क्या होता है कि सामने वाला जो रिएक्ट कर रहा है ना, अब अगर ये 4 या 5 बार करेंगे ना तो आपको बाद में पता नहीं चलेगा कि इसमें मिरर कौन था और पर्सन कौन था। लेकिन ये एक्सरसाइज क्या करता है? कंसंट्रेशन बढ़ाता है। साइमल्टेनियसली उनकी आंखों में जब देखते हैं ना आपको पता चलता है कि इनका नेक्स्ट मूवमेंट क्या होगा। ये कोऑर्डिनेशन जो है ना ये बिल्ड करता है ये एक्सरसाइज। फिर से हम अच्छे से करें। ब्रश हो गया, अभी नाश्ता करो। अब आप लोग बताइए कि ये जो सोच कर आए थे वो क्या था और क्या हो रहा है। कोऑर्डिनेशन नहीं था, तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? नो नो आई कांटेक्ट। से आप बोले ना आई कांटेक्ट। कान कितने पावरफुल होते हैं, वो टीचर्स के कान इतने पावरफुल रहने चाहिए, कहीं से भी आवाज क्या आए। हाँ बोलिए। सबसे पहला ये जरूरी है कि दोनों की आंखें जो है ना, आपको कहीं पर देखना नहीं है कि ये हाथ ऊपर ला रहे हैं या नीचे ले जा रहे हैं। सीधा आप उनकी आंखों में देखे, वो अगर पाँव जो है ना उसकी उंगली भी हिलाएंगे ना आपको दिखेगा वो। इसीलिए थिएटर में हम आंख में आंख डालकर कैरेक्टर से बात करते हैं, इधर उधर घुमाकर बात नहीं करते। समझ रहे? तो फिर से चल। अभी देखिए आपने हाथ लेट लिया, नो, फिर से आए, नहीं फिर से आए, फिर से आंखों से ही देखना, स्टेडी। नो नो नो, पहले उनको टाइम दीजिए ना। वो सामने वाला सही में मिरर है ऐसा मत मानिए आप। उसको टाइम, ठीक है? हाँ। कैसे होगा? मिरर में कौन सा आता है? ये सही है या गलत है? कौन सा ह्यूमन बीइंग का हाथ और कौन सा उसका हाथ, वो कैसे पता चलता है?
कैसे ऑपोजिट जाएगा? राइट लेफ्ट कैसे हो जाएगा? चलिए, साइलेंस साइलेंस। आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? गुड। ये एक्सरसाइज इसके लिए है कि जब आपको कम्युनिकेट करना है, किसी को समझना है, सीधा उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे, आपको जो होगा ना उसका जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक है? फिर से तुरंत आप मत बदले। मैम, जब आप एक्शन करते हो तो सामने वाले एक्टर को वो मूवमेंट के लिए टाइम देना पड़ेगा। माने इंडिकेशन है ये कि जैसे मैंने ये कहा, तो मेरे सामने तो ऑब्जेक्ट नहीं है अभी, फिर भी मैं ये समझकर अगर करता हूं तो आप दोनों को एक दूसरे को समझने के लिए वो टाइम देना पड़ेगा। फिर से इसीलिए आइए आइए आइए, नहीं बहुत जरूरी है। अरे आप चिंता मत करो ना, हम सब लोग बात ही कर रहे हैं। नॉट टू वरी, आइए। हाँ वो क्या थी वो बोल दीजिए ना। जूलिया आ रहे हैं, सिंपल वेरी करेक्ट, बहुत अच्छी बात कही। क्या किसी और को कुछ माने इन्होंने जो कहानी कही उससे कुछ अलग नजर आया आपको या नहीं आया? मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही? अच्छा, उनकी आवाज थी ही नहीं, वो माइक में था। लेकिन जो विजुअल्स आपने देखा उसमें से इनके मन ने क्या कहा? उन्होंने अपने आप एक कहानी बना ली। हमने तो नहीं कही थी वो कहानी, आप भी नहीं कहना चाहते थे वो कहानी, फिर भी इनके दिमाग में क्यों आ गई? कारण बता सकते हैं? इसीलिए जब हम कोई फिल्म देखते हैं या नाटक देखते हैं या क्लास में बच्चा जब आपकी क्लास में पढ़ाई कर रहा है, आपको सुन रहा है, तो क्या हमें ऐसा लगता है कि जो फर्स्ट नंबर पर आने वाला बच्चा है वो वही विजुअल करता है जो कम मार्क्स पाता है? वो आप परसीव कैसे करते हो? और वो परसीव करने के लिए आप आपके आसपास जितना ऑब्जर्वेशंस करते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपके दिमाग में वो स्टोर हो जाती है, और उस प्रकार की घटना जब सामने क्रिएट होती है, आपका माइंड इमीडिएटली वन बाय वन फ्रेम जो है वो जो अंदर स्टोर हुई थी उसमें से वो रिलेट करके आपके स्क्रीन पर लाकर रख देता है। माने ऐसा नहीं हो सकता कि मैं जो यहां से बोल रहा हूं, मेरा प्रयत्न क्या होगा कि यहां पर जो भी 50 लोग 60 लोग जितने भी बैठे हैं यहां पर, मैं अपनी बात उन तक पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। समटाइम्स कुछ ऐसा होगा कि इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहां है बट मानसिक रूप से यहां नहीं है। ये स्थिति हमारी होती है जब हम रिहर्स करते हैं ना। 3 महीना 4 महीना अगर हम रिहर्सल करते हैं तो आप सोचिए हर रोज एक ही लाइन
बार बार दोहरानी है, 4-4 बार, 5-5 बार, 6-6 बार दोहरानी है। 4 महीने के बाद क्या होगा? हाँ, 4 महीने के बाद क्या होगा? वो अच्छा हो जाएगा या क्या होगा? एक सब्जेक्ट, एक टॉपिक हम इतने सालों तक पढ़ाते रहेंगे तो फिर क्या होगा? मोनोटोनी होगी या वेरिएशन आएगा? हम कभी कभी मायूस हो जाते हैं, इसीलिए कि हर रोज वही का वही करते हैं। लेकिन एक चीज जो है ना, वो बार बार हर रोज रिहर्सल में हाथ में नहीं आती, और वो क्या है? नो कंसंट्रेशन तो रहता ही है। कैरेक्टर के इमोशंस, और वो इमोशंस कभी बाहर से नहीं आते, हम उस लाइन के अंदर से उस कैरेक्टर की भावनाओं को समझकर एवरी डे उस इमोशन को कैरी करने का प्रयत्न करते हैं। कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, उस दिन की रिहर्सल बहुत ही अच्छी होगी। जिस दिन घर से हम निकले हैं, बड़ी अच्छी सी प्रिपरेशन हमने की है, उस दिन हमारी क्लास बहुत अच्छी जाएगी, हमें पढ़ाने में बहुत बड़ा मजा आएगा। लेकिन कुछ दिन ऐसे हो जाएंगे कि वेरी बैड डे, नहीं मजा आया। व्हाई? मे बी देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स फ्रॉम, माने घर से शुरू होते होते क्लासरूम तक आते हैं। कभी कभार जो अच्छा शुरू नहीं हुआ था घर से, वो क्लास में आते आते, क्लास लेते लेते अचानक से वो दिन बहुत अच्छा चला जाता है। वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ ओनली इमोशंस। हमारा काम एवरी डे, हर रोज उस इमोशंस को पकड़ना, उसको एग्जीक्यूट करना, और उसी इमोशन को डे बाय डे उसे बढ़ाते हुए और ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड वे में लोगों तक पहुंचाना, ये रिहर्स करना। अब हर रोज हमें बटाटे की सब्जी खाने को बोलेंगे तो कैसा होगा? कितने दिन अच्छे लगेगी? नहीं लगेगी ना। लेकिन हमारे पास तो डायलॉग्स वही है, सिचुएशंस भी वही है, एवरीडे 3 आवर्स 4 आवर्स के रिहर्सल्स, और उसमें उस कैरेक्टर को माने उसके इमोशंस, उसका वॉइस एंड स्पीच, वो धीरे धीरे ग्रो करते करते उसे पकड़ के रखना, एंड शो के दिन वो सारा जो इकट्ठा किया था वो ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करना, वो इजी टास्क नहीं। और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक सीधा पहले मैंने क्लिप बनाई है, ये आप देख ही रहे हैं, तो उसको देखेंगे। उसमें कुछ सारे डायलॉग जो है वो एक के बाद एक चलते जाएंगे, आप देखिए। बाद में हम त्रिलोक सर के साथ कंटिन्यू करेंगे। महात्मा के विधान पर क्या हिंदुस्तान में दुर्बल वचन होતું આવીને ભાસ સરકારે મારી આ વખતે જોયું કે કૂતરા ભસ્યા અને કરડ્યા ખરા અને આવતી લડતમાં એ હડકાયા બનીને કરડશે એવી ખાતરી હું સરકારને આપું છું બહુ સુખાઈ ગયા છો તબિયતની કાળજી લેતા નથી એવું નથી 70 ની ઉંમરે તબિયત એટલી સારી હોવી જોઈએ એવી છે उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसका माइंड जो है एवरी डे हमें ऐसा तैयार करना पड़ता है कि कभी भी जिस समय रिहर्सल शुरू हो हम उस कैरेक्टर के अंदर हो। ये प्रैक्टिस से संभव हो सकता है, चाहे हम शिक्षक की भूमिका में है या मैं इस सरदार की भूमिका में हूं। पात्र तो हम सभी हैं, सिर्फ इतना है कि डे बाय डे कभी 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, ये करते 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 जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं। ये मेरे लिए बहुत कठिन था, मेरी जिंदगी का सबसे कठिन कैरेक्टर अगर तैयार करना है
तो ये कैरेक्टर था, क्योंकि ये तलवार की धार पर चलने वाला कैरेक्टर था। कहीं भी एक डायलॉग, एक शब्द, इतिहास के संदर्भ, क्योंकि ये लाइव है ना, रिकॉर्डेड नहीं है, ये रिकॉर्डेड है, लेकिन परफॉर्मेंस 3.25 घंटे का वो लाइव है। तो हमारे मन को, हमारे शरीर को कितना कॉन्सेंट्रेट करके जब पर्दा खुलता है तो कितना ध्यान रखना पड़ता है। यही बात टीचर्स के लिए है। जब हम प्लेटफॉर्म पर आते हैं, उस टॉपिक को लेकर जब आते हैं ना, फिर हमारे पास दूसरी संभावना नहीं रहती। आई थिंक बातें काफी करनी थी, लेकिन मेरे से जो भी बन पड़ा है वो मैंने आज आपके सामने रखा है। 5 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक करते हैं और बाद में त्रिलोक सर अपना सेशन। We are in between the good morning and good afternoon. First of all, I would like to thank Ranchod sir, Prakash sir, and all the management of Amity School, and of course my guru Rakesh Modi sir. It's a great pleasure for me at this moment. At the same time, I'm a little bit of nervous also because I learned everything, whatever I'm going to present and whatever I'm going to talk with you, that everything, each and every word, each and every expression I've learned from Modi sir, and I am today in front of him. He's sitting here, and first time I'm giving you a lecture like this, and he's there. So, so that way, I'm excited also. I'm little bit nervous also, but at the same time, it's a challenge also, right? So, being a teacher also, we always have this kind of an emotions when you enter into the classrooms. So we are excited to give something new. We are a little bit of nervous whether the students will get something from you or not. And at the same time, you have a kind of a confusion in mind कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि वहाँ पर कोई ऑब्जर्वर नहीं है. So, being a teacher, I think it's always a challenging role, because क्या होता है हर दिन, जैसे सर ने अभी 2-3 बार कहा कि हर चीज को नए तरीके से हमको बच्चों के सामने रखना. We have to present everything in a new way every day. It's very difficult task. जैसे अभी सर ने जो क्लिप दिखाई, तो ये सिर्फ एक क्लिप थी, लेकिन वो जो जर्नी है, सरदार पटेल की जर्नी है टू बिकम अ सरदार, राइट? एक नॉर्मल लीडर से टू बिकम अ सरदार, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ वेरी चैलेंजिंग, राइट? तो उसी तरह से जब हम एक शिक्षक के तौर पे, व्हेन यू एक्सेप्ट अ जॉब ऑफ अ टीचर, राइट, फ्रॉम द मोमेंट यू एक्सेप्ट द जॉब, इट्स अ बिगिनिंग ऑफ अ चैलेंजिंग लाइफ. क्योंकि हम सिर्फ क्लासरूम में नहीं पढ़ाते हैं, क्लासरूम में पढ़ाते हैं वो तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ एवरीडे लाइफ में जो हमको सीखना होता है पढ़ाने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर दिस थिएटर जो हमारा है, द ड्रामा गिव्स यू दैट एज ऑफ थिंकिंग कि हम हर रोज नया क्या कर सकते हैं, व्हाट वी कैन डू एवरीडे न्यू, राइट? तो वो छोटी छोटी चीजें जो होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम इग्नोर करते हैं. बेसिकली इन थिएटर हम उस हर छोटी चीज को फोकस करते हैं, और इन जनरल बीइंग ए ह्यूमन, बीइंग ए टीचर, हम उस छोटी चीज को इग्नोर करते हैं. ये सबसे बड़ा फर्क है एक थिएटर आर्टिस्ट में और एक जनरल पब्लिक में, राइट? तो आज हम एक काम करते हैं. अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों ने घड़ी पहनी है? हाथ उठाइए, मैक्सिमम. ठीक है, आपने कौन से हाथ में घड़ी पहनी? ठीक है, अब एक काम करना है आपको, वो घड़ी को खोलिए और उसके अपोजिट हाथ में पहन लीजिए. पहनना है उसको अपोजिट हाथ में पहना दीजिए. और उसको वहां पर रखिए. बात उसके बारे में हम एंड में मैं आपसे बात करूंगा. कितनी छोटी सी बात है और आसान भी है ना?
गौर करिएगा। तो जब हम क्लास में जाते हैं, when you enter into the class, what are the small things which you need to understand? थिएटर में जब हम कोई भी कैरेक्टर करते हैं, जैसे सर ने भी आपको क्लिप बताई, तो आपको लगता है कि ये सिर्फ 1 दिन में हो गई है, 2 दिन में हो गई है, 3 दिन में नहीं, तकरीबन 2.5 महीने का ये रिहर्सल है, 2.5 month, इज मोर देन दैट। लेकिन रिहर्सल शुरू होने से पहले भी उसकी प्रिपरेशन मेंटल होती है। जब स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आती है तो एक्चुअल रिहर्सल पहले शुरू करने से पहले हमको रिहर्सल जो हम करते हैं, रिहर्स जो हम करते हैं। अच्छा, ये रिहर्स का मतलब क्या होता है? आप डिक्शनरी पे मत जाइएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिहर्स? क्योंकि टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी टीचर दिस रिहर्स वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नहीं, मतलब रिहर्स मतलब क्या होता है? हम क्या करते हैं? व्हाट वी डू इन रिहर्स? प्रिपरेशन। सो जस्ट सेपरेट द वर्ड्स री एंड हर्स। Re means what? Repeat. Hers means which is very difficult. So those things which are very difficult, you have to repeat. Repeat means repeat till it becomes in your habit. आप रोज टू व्हीलर चलाते हैं? Everybody, आज के जमाने में तो 4 व्हीलर 2 व्हीलर इट्स वेरी कॉमन चलाते हैं। आप घर से जब निकलते हैं, रास्ते में बहुत सारे 4 रास्ते आते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स। तो कभी आपको माइंड को कमांड देना पड़ता है, अच्छा लाइट अभी 4 रास्ता है, रेड लाइट है, बंद करो, ऐसा कहना पड़ता है? क्यों? प्रैक्टिस, राइट? सो दैट प्रैक्टिस, तो टीचर्स को हमेशा प्रैक्टिस में रहना पड़ता है। द सेम वे द थिएटर आर्टिस्ट हैज टू बी ऑलवेज इनटू अ प्रैक्टिस, सो दैट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर ने जो वॉइस ऑफ स्पीच की बात की, बॉडी मूवमेंट की, तो ये सिर्फ एक बात नहीं है कि जो हम पूरा परफॉर्मेंस करने के लिए रेडी करते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं, कैसे हम चलते हैं, कैसे हम उठते हैं, कैसे हमारा इमोशन है, कैसे एक्सप्रेशन है। अभी आप जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हो, सबका बैठने का पोस्चर अलग है। हर पोस्चर्स का एक मतलब है। तो जब आप यहाँ पर स्टेज पर, जहां पर स्कूल में जब आप खड़े रहते हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर बॉडी लैंग्वेज एंड योर बॉडी पोस्चर्स। बिकॉज जो स्टूडेंट होते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी जाने वाले जो बच्चे होते हैं, दे ऑलवेज ऑब्जर्व टीचर्स एंड दे ट्राई टू इमिटेट यू, राइट? सो आपका बॉडी पोस्चर वो बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप क्या कहना चाहते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज। मैं बच्चों से अगर बात कर रहा हूं तो बच्चों को समझना है। फॉर एग्जांपल एक टीचर के तौर पर मेरा ऑब्जर्वेशन बहुत पावरफुल होना चाहिए कि जो भी बच्चे यहाँ बैठे हैं, जो मेरा क्लास है उसमें कौन सा बच्चा कैसा है। अब ऑब्जर्वेशन जो है ये किसी क्लास में हम सिखा नहीं सकते हैं। नोबडी कैन टीच यू द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज क्वाइट नेचुरल प्रोसेस कि आपकी आदत बननी चाहिए। मैंने आपको रिहर्स इसलिए बोला कि यू हैव टू मेक ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर हैबिट। जो भी आप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, उसको हैबिट बनाइए। जब तक वो हैबिट नहीं बनेगी, वो फिर एक मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल ये हॉल है, इस हॉल में आप कितने बार आए होंगे? आप स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है? आपने कभी नोट किया कि ये जो आपके कर्टन है उसकी कितने फोल्ड्स हैं? आपने नोट किया कि कितने स्पीकर्स हैं, कितने फैन हैं? याद है? मैं सिर्फ आज ही आया, मुझे पता है कि एक पर्दे के अंदर 10 फोल्ड्स हैं, दोनों को मिलाते 20 होते हैं। ठीक है? यहाँ पर 12 पंखे हैं। तो कहने का मतलब ऐसा ये नहीं कि मैं गिनने बैठा था। दिस इज माई हैबिट, इट्स अ हैबिट ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी हम यहां से गए, प्रकाश सर ने कहा मासी, शी अंडरस्टैंड क्या? चाय। तो इतना कहने पर अगर मासी समझ रही है कि सर प्रकाश सर ने कहा है चाय बनानी है, so the same thing, teacher has to make the habit and create such process कि आप जब बच्चे को कुछ कह रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो उसको सीधा समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। You have to make it easy, make the subject, the things easy। यहाँ पे सर ने जो कहा, it's an use of body language, use of gesture postures, है ना? अभी फॉर एग्जाम्पल आप हर चीज को, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि मैथ्स को मैं कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता हूँ। That's where your critical thinking and creativity lies। आपके क्रिटिकल थिंकिंग पर ऑलरेडी आई थिंक एक
सेमिनार का पता नहीं सर आके आपको बता चुके हैं। सो व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट इज लीडरशिप, यू ऑलरेडी नो। तो वो जो रोल है उसको कैसे प्ले करना है ये थिएटर आपको सिखाता है, ठीक है। तो वो चीज बहुत जरूरी है, इमेजिनेशन। टीचर के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है, एक थिएटर आर्टिस्ट के लिए भी जो इंपॉर्टेंट होता है, इमेजिनेशन, कि आप कैसे इमेजिनेशन करके उस चीज को कितनी आसानी से समझा देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम मुझे अभी की टेक्स्ट बुक का नहीं पता है, इसलिए मैं आपको पूछ लेता हूं कि अब की टेक्स्ट में वो रैबिट और टॉर्टोइस की कहानी है क्या? नहीं है, ठीक है। हम उसको एग्जांपल के अच्छा आपने सुनी है क्या रैबिट एंड टॉर्टोइस की कहानी? किसको पता है? सबको पता है। क्या है कहानी, कोई बता सकता है मुझे? कोई एक, आई जस्ट वांट टू नो क्या है वो कहानी, क्या है प्लीज। रैबिट एंड टॉर्टोइस में रेस होता है। रैबिट जनरली ही थॉट्स की है ना, वो सबसे फास्ट रनर है, टॉर्टोइस से कंपेयर करता है, और वो इस ईगो में जब रनिंग करता है तो ही थॉट कि मैं तो एज यूजुअल ऑलवेज फर्स्ट आने ही वाला हूँ, तो वो जाकर रेस्ट करने बैठ जाता है एक ट्री के नीचे। सडनली जो ग्रेजुअली वो टॉर्टोइस था जो रनिंग में पार्टिसिपेट करके वॉक करते हुए भी जा रहा था, और वो अपनी ईगो में जब सोते हुए रह जाता है, टॉर्टोइस वो फिनिशिंग लाइन पर पहले पहुंच जाता है एंड ही वॉन द रेस। ओके, स्लो स्टडी प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली, राइट। अब आज मैं 2025 में ये कहानी आपको पूछ रहा हूँ, और अगर मुझे ये कहानी फिर से सिखानी है तो व्हाट इज द न्यू थिंग्स? सो दैट इज व्हाट आई एम। सो यही कहानी है। सी इसीलिए क्यों हम कहते हैं सी आवर लिटरेचर इज वेरी रिच इन दैट। पंचतंत्र क्यों की कहानियां क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है फॉर द लाइफ? It's not only a story, but the story of Panchatantra gives you a new dimension, right? New dimension. अब यही कहानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि टॉर्टोइस जो है पहले रैबिट है फास्ट, इसलिए वो पहले पहुंच गया, ठीक। अब उसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, रिवाइंड द स्टोरी, ठीक है। अब टॉर्टोइस बोलता है नहीं नहीं ये तो चीटिंग है, मैं रेस्ट कर रहा था तुम भाग के चले गए, रेस नहीं है, दिस इज नॉट द रेस, हमको फिर से रेस करनी पड़ेगी। सो दे स्टार्ट रेस अगेन, ठीक है। तो इस बार क्या होता है कि किसी तरह से टॉर्टोइस जीत जाता है इस रेस में। तो रैबिट बोलता है कि नहीं ये भी गलत है, पहले मैं जीता था अब तुम जीते, अब तीसरी रेस करनी पड़ेगी, है ना। क्यों? कि बीच में क्या है, एक नदी आती है जहां पर वो रुक जाता है, वहां पर वो रुक जाता है ना, ठीक है। अब होता ही है कि तीसरी अगेन रेस शुरू होती है। अब दोनों एक जगह पर आके रुक जाते हैं, दोनों सेम टाइम पे नदी के वहां पर, नदी के किनारे रुक गए। अब टॉर्टोइस तो आराम से क्रॉस करेगा, लेकिन रैबिट नहीं कर पाएगा ना, उसको कुछ और रास्ता ढूंढना पड़ेगा लंबा वाला, राइट। सो यहाँ पर टॉर्टोइस क्या करता है, उसको अपनी पीठ पे बिठाता है और जाता है, दोनों जीतते हैं, द बोथ विन्स। नाउ व्हाट इज द मोरल? So the teamwork, right? It's a teamwork. तो अभी ऐसी जो क्या बोलते हैं स्टोरी या कैसी बात अगर आपको बच्चों को बतानी है, तो what is teamwork? So you can create a stories with a different aspects, जैसे हम नाटक में करते हैं। नाटक में कला शायद प्लेराइट ने तो लिख दिया था यहाँ पर कि भाई ये डायलॉग इस तरह से बोला जा रहा है कि भाई मोहन सुबह उठ के चाय पीता है, ये उसने लिखा हुआ है प्लेराइट ने। लेकिन मोहन चाय सुबह उठ के पीता है, तो जब मैं एज एन एक्टर उस कैरेक्टर को प्ले करता हूं और उस संवाद को बोलता हूं, तो मैं क्या करता हूं, उसकी रिसर्च करता हूं कि अच्छा वो सुबह उठ के चाय क्यों पीता है, किस तरह की चाय पीता है, मीठी पीता है, फीकी पीता है, कितने वक्त तक पीता है, कितनी देर तक पीता है, वो चाय पीते पीते और क्या एक्टिविटी करता है। So being an artist, मैं ये रिसर्च करता हूँ। So the same thing which teacher has to research, कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो या जो भी टॉपिक आपने पढ़ाया है या पढ़ाना है, उसके पीछे का रिसर्च बहुत जरूरी है। डे टू डे लाइफ में आपको अपडेट रहना पड़ता है। एक एक्टर को जिस तरह से अपडेट रहना पड़ता है, वैसे ही टीचर को। इसीलिए थिएटर एजुकेशन क्यों बोलते हैं, क्यों आज हम इस
बहुत सी स्कूलों के अंदर बहुत सी गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यू हैव टू कीप अ थिएटर एज अ सब्जेक्ट। कि वो थिएटर जो है वो क्या देता है आपको, एक नई सोचने की एक आपकी हैबिट बनाता है। रोज आपने वही 2+2=4 किया है, लेकिन आज मैं 2+2=4 सिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, मुझे फ्रैक्शन सिखाना है मैथ्स में मान लीजिए, तो मैं क्या करूंगा। तो हो सकता है कि मेरे क्लास में मैं 4 बच्चों को खड़ा करता हूँ, एक को मैं एक व्यापारी बना देता हूँ, मर्चेंट बना देता हूँ, दूसरा खरीदार है, तीसरे 2-3 बैठे हैं, वो आता है, वो बोलता है कि 3 रुपए 25 पैसे का है, तो वो उसको 5 रुपए देता है, तो हाउ मच ही विल गिव बैक। सो क्रिएट अ स्मॉल सेक्शंस ऐसे सिलेक्ट करके उसको हम यहाँ पर सीधा सीधा थ्रू दिस परफॉर्मेंस, उसमें क्या होगा, वो एंजॉय भी कर रहा है, लेकिन करते करते अननोइंगली उसको पता चला कि फ्रैक्शन क्या होता है। राइट? तो इसी तरह से हर सब्जेक्ट में, जैसे हम एज बीइंग ए थिएटर में जब हम करते हैं, तो उस चीजों को, जैसे मैंने कहा कि मोहन चाय पीता है सुबह उठ के, लेकिन वो क्यों पीता है, उसकी पूरी हम 3 पेज की उसकी पूरी क्वेश्चन तैयार करते हैं, 5 W's, कि क्यों, कैसे, कहां, क्यों। जब तक वो 5 W's के आंसर हमको नहीं मिलते, हम स्टेज पर परफॉर्म नहीं करते। तो वो 5 W's एक टीचर्स को भी पता होना चाहिए, टीचर्स को भी तैयार करने अपने खुद के 5 W's, कि मैं अगर रानी लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री पढ़ा रही तो क्यों पढ़ा रही हूं, क्या मुझे पढ़ाना है इसलिए पढ़ा रही हूं, या मुझे सच में इतिहास जो है मेरे बच्चों को वो सिखाना है इसलिए मैं सिखा रही हूं, या एक इंफॉर्मेशन है जो मुझे पास ऑन करना है तो मैं पढ़ा रही हूं। क्योंकि इन तीनों में आपका एक्सप्रेशन बदलेगा। जब मैं ऐसा समझता हूं कि इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी टू पास ऑन द हिस्ट्री टू द नेक्स्ट जनरेशंस, तो मेरा भाव बदल जाएगा, मेरा एक्शन बदल जाएगा। लेकिन जब मैं ऐसा सोच के आता हूं कि मुझे एक इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है, तो मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन ही दूंगा, माय एक्सप्रेशन, माय बॉडी लैंग्वेज विल गोइंग टू चेंज। सो सबसे पहले जो आपको सोचना है वो ये है कि मैं क्या करता हूं, being that 5 W's, you ask a 5 W's every day to yourself. As soon as you are entering the class, before that you think कि आज इस सब्जेक्ट में मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्यों पढ़ाना है, किस लिए पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। You always prepare with your lesson plan. Lesson plan in the sense कि क्या किया है वो नहीं, but कैसे करना है, कैसे करवाना है। And then add to your imagination daily. ठीक है, एक एक्सरसाइज करते हैं, आप सब अपनी जगह पर बैठ के आपको आंखें बंद करनी है, और जब तक मैं आपको न कहूं आंखें नहीं खोलनी है, और जस्ट आपको वही सुनना है जो मैं कहूंगा। ठीक है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए, और जब तक मैं न कहूं आंखें मत खोलो। सब ऑनेस्टली करेंगे ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। तरीका अलग होगा, तो आप जितने रिलैक्स अपनी बॉडी को जिस तरह से कर सकते हैं आप वो करने की आपको छूट है। रिलैक्स, रिलैक्स, कॉन्सेंट्रेट आपके फोरहेड पर करना है आपको। ट्राई टू सी योरसेल्फ, अपने आप को देखने की कोशिश करनी है। अपनी ब्रीदिंग प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है। Try to see your soul. Now just think of it that your soul now is coming out of your body. It is just standing in front of you. आपकी ही आत्मा, आपकी ही सोल आपके सामने खड़ी है। Now your soul is watching your own body. You are observing your own body. How does it looks? The first time you are observing very keenly yourself.
Soul is coming. Now it's going slowly, slowly away from you. It's going away from you. धीरे धीरे आप दूर कहीं जा रहे हैं. चल रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. अचानक सामने एक जंगल आया. उस जंगल से आप निकल रहे हैं. सूखी सूखी पत्तियां, उस पर आप पांव रखकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं. पत्तियों की आवाज. चलते चलते अचानक पैर में कांटा चुभता है. धीरे से आपने वो कांटा निकाला. फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़े. थोड़ी दूर चलने पर अचानक जंगल खत्म होने पर आपको एक हरा भरा मैदान दिखाई देता है. इट्स ग्रीन, लश ग्रीन. आप उस पर चलते हैं. उस घास पर अभी अभी ओस पड़ी हुई है. उस ओस पर आप पांव रखते हैं, चलते हैं. यू फील गुड, इट्स प्लेजेंट. थोड़ी दूर चलते हैं. अचानक आपको एक साउंड सुनाई देता है, आवाज. एक रथ की आवाज. एक रथ कहीं से आ रहा है. आप उस आवाज की दिशा में देखते हैं. धीरे धीरे वो आवाज बढ़ने लगती है और वो रथ आपके नजदीक आके खड़ा हो जाता है. यू वंडर, आप उसे देखते रहते हैं. अचानक उस रथ से एक हाथ बाहर आता है. आप अपना हाथ उसके हाथ में दे देते हैं और आप उस रथ पर बैठ जाते हैं. जैसे ही आप बैठते हैं, धीरे धीरे रथ चलने लगता है. अब धीरे धीरे रथ अपनी गति पकड़ता है. इट्स गेटिंग स्पीड. थोड़ी दूर जाने पर तीव्र गति से चलता रथ अचानक हवा में उड़ने लगता है. उड़ते उड़ते वो बादलों में सफर करने लगता है. सफेद बादल, उसमें से उस रथ का पसार हो रहा है, वहां से निकल रहा है. इट्स गोइंग थ्रू. थोड़ी दूर पर सफेद बादल की जगह पर आपको नीला आकाश दिखाई देता है. स्काई ब्लू, प्योर, प्योर, एकदम प्योर. धीरे धीरे रथ उड़ता हुआ आगे जा रहा है और बहुत बड़े बड़े पहाड़ आते हैं. हरे हरे पहाड़, ग्रीन पहाड़ दिखाई देते हैं आपको, जिस पर बहुत से अलग अलग प्रकार के फूल दिखाई देते हैं आपको. There are so many flowers on the mountains. You're happy. जैसे ही माउंटेन खत्म होते हैं, एक समुद्र दिखाई देता है, पानी का समुद्र. It's a sea. अब वो रथ, चैरियट उस पानी पर से निकल रहा है. You're happy.
आप अपना हाथ बाहर निकाल के पानी को स्पर्श करते हैं. इट्स अ कोल्ड वाटर, ठंडा पानी. You're enjoying. और जैसे ही समुद्र धीरे धीरे खत्म होता है, आप उसी लश ग्रीन ग्राउंड पर वापस आते हैं जहां से आपने शुरू किया. उसी ही घास पर फिर से रथ दौड़ने लगता है और धीरे धीरे उसी जगह पर आकर रुक जाता है जहां से आप बैठे थे. आप रथ से नीचे उतरते हैं. जैसे ही आप रथ से नीचे उतरते हैं, रथ शुरू होता है और धीरे धीरे वहां से दूर चला जाता है. अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ ग्रीन, लश ग्रीन गार्डन, ग्रीन लैंडस्केप. अब फिर से वापस जहां से आए थे उसी जंगल की तरफ जा रहे हैं. धीरे धीरे वापस जंगल से बाहर आकर खत्म हुआ, वापस आप अपनी ही जगह पर जहां बैठे थे वहां पर आकर आप फिर खड़े हो जाते हैं. यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ अगेन. फिर से आप अपने आप को देख रहे हो, शांत, प्योर, ब्राइट. नाउ योर सोल इज प्योर, योर थॉट्स आर प्योर, योर माइंड्स आर प्योर, योर बॉडी इज प्योर. जब आप निकले थे तो कहीं शायद कुछ दिक्कतें थी बॉडी में, माइंड में. हाथ दुख रहा था, शरीर दुख रहा था, सर दुख रहा था. सडनली यू फील एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन. यू आर प्योर. योर सोल इज अगेन एंटरिंग इनटू योर बॉडी. It's peace. Peace. You are into the hall again. Now slowly, slowly open your eyes. Open your eyes. मैंने कोई मेडिटेशन नहीं करवाया. इट्स नॉट अ मेडिटेशन. या इट्स अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, बट द पर्पस इज नॉट मेडिटेशन. ओके, हाउ डू यू फील? नींद आ गई. प्रैक्टिस बार-बार करो. Students, right. Now, coming to the topic. मुझे आप लोगों में से कोई भी 4 या 5 लोग, मैं जो सवाल पूछूंगा सिर्फ उसका जवाब आपको देना है. ठीक है? ओके. पहली बात कि जंगल में पत्ते कौन से थे? एक एक करके बताइए. सूखे तो मैंने कहा, कौन से? आम के पत्ते थे, नीम के पत्ते थे, एक एक करके जरा बताइए. बांस के पत्ते थे. चलिए, और किसी यहाँ से? चंदन के पत्ते थे. चलिए, और? नीलगिरी. ठीक है. चलिए, आपके रथ में घोड़े कितने थे? किसी को नहीं कहा तो उसको रथ में घोड़े नहीं दिखाई दिए. किसी को कहा तो 2 दिखाई दिए, किसी को 4 दिखाई दिए. ठीक है. अच्छा, चलिए, जिनको घोड़े दिखाई दिए वो कौन से कलर के थे? सभी के व्हाइट थे. सो दैट मीन्स my conversations, my storytelling is perfect. Right?
ओके चलिए, आपको पहाड़ों पे जो फूल दिखाई दिए थे वो कौन से फूल थे? कौन से बताइए ना, कौन से थे? सबको एक ही गुलाब दिखाई दिए, चमेली दिखाई दिए, कमल दिखाई दिए, क्या दिखाई दिए? हाँ, जंगली फूल दिखाई दिए। यहां से कोई बोले गुलमोहर। हमने पूरा बाहुबली 2 ओके, सो अभी सोचिए कि सबको मैंने एक ही कहानी सुनाई है। I narrated only a single story, but still, depending on your own imagination and perception, you perceive it differently. किसी ने शायद 2 घोड़े देखे, किसी ने 4 देखे, किसी ने देखे ही नहीं। ठीक है, किसी को लाल फूल दिखाई दिए, किसी को गुलमोहर के लिए, किसी को जंगली फूल दिखाई दिए। ऐसा क्यों हुआ? स्टोरी तो एक ही थी। इमेजिनेशन पर डिपेंड करता है। और कुछ चीज है जो कनेक्ट करती है आपको? सो क्या है, आपने जो कुछ अनुभव किया है, जो कुछ देखा है, उससे आप रिलेट कर, यू रिलेट टू योर नॉलेज, योर एक्सपीरियंस, है ना? क्योंकि हमारे देश में महाभारत, रामायण, ये हमने देखी, हमको सबको शायद एक ही रथ भी दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता था, सबको सफेद ही घोड़े दिखाई दिए। उसका कारण भी यही है, क्योंकि हमने वही सीरियल देखा है, वही फिल्म देखी है शायद। तो वी रिलेट विद योर एक्सपीरियंस, विद योर नॉलेज और सो फार एक्सपीरियंस। तो जब बच्चे को जब आप कोई भी चीज क्लासरूम में भी पढ़ाते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। क्योंकि अभी देखिए, फॉर एग्जांपल, we are not going to dissect this exercise into more deeper, because this has so many layers. This exercise has so many layers. मतलब ये हम लोग पूरा एक हफ्ता इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करते हैं, because it has so many deeper meanings and layers, right? But अगर हम मोटा अगर इस पे बात करें, just for the उसके लिए, तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा कि आपके क्लास का वो जो बच्चा है, उसका परसेप्शन क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। You will be able to understand, and then you try to reach according to her perception and her personality, क्योंकि सभी एक जैसे नहीं होते। जैसे हम किरदार करते हैं, तो सारे किरदार एक जैसे नहीं होते हैं। ये जो नाटक आपने देखा, सरदार सर ने जो रोल किया, उसमें मैंने भी एक रोल किया, तो मेरा परसेप्शन, मेरा उसका सोचना, मेरी जो प्रिपरेशन है वो अलग है। तो जब हम क्लास में जब पढ़ाते हैं, जब हम क्लास में किसी सब्जेक्ट को नरेट करते हैं, सो द चिल्ड्रंस आर आल्सो हैव अ डिफरेंट एबिलिटी टू अंडरस्टैंड। तो आपको ऐसे नई एक्सरसाइज के थ्रू फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड योर चिल्ड्रंस, अंडरस्टैंड योर स्टूडेंट्स एंड अप्लाई दिस प्रोसेस ऑफ थिएटर इनटू योर क्लास। तो इसमें बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम मतलब पूरा दिन पे अगर हम बात करेंगे तो कम पड़ेगा, बिकॉज थिएटर हैज, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि इतनी सारी उसकी संभावनाएं हैं। भरतनाट्य शास्त्र में जो भरत मुनि ने लिखा है, नाट्य शास्त्र, अगर किसी ने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो तो पढ़ना, तो आपको पता चलेगा कितने डीपर लेवल तक इसको समझाने की कोशिश की। एक और बहुत अच्छी बात उनके फर्स्ट चैप्टर में की थी कि जब मैं एज एन एक्टर यहाँ से एंट्री लेता हूँ और स्टेज पर आता हूँ, तो एक्टर मर जाता है, एक्टर इज डाइड, ठीक है। और जब मैं एग्जिट लेता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मैं ये था, वो नहीं। तो सेम वे, when you enter into the classroom as a teacher, then you are no more XYZ. Try to forget yourself first. The only thing you are there in the classroom is teacher. फिर मैं X नाम हूं, Y नाम हूं, वो नहीं है। वो पर्सनालिटी मेरी जैसे ही मेरे एंटर होती है, वहां बाहर छोड़ के आती है। That's what the theater teach to us, and that is why theater is very important। कि हमारी जो हैबिट है, अगेन मैं उस पर आता हूँ, रिहर्स हैबिट,
वो हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट काइंड ऑफ अ हैबिट यू प्रिपेयर फॉर योरसेल्फ, मतलब जैसी आप आदतें अपनी बनाएंगे आप वैसा ही क्लास में प्रेजेंटेशन कर पाएंगे। क्योंकि बहुत से ये प्रोफेशन ऐसा है, बिकॉज मैं भी एक टीचर हूं, मैं समझता हूं कि हर रोज एक नए चैलेंज के साथ, कि आज हो सकता है कि ये साल एक अच्छी बैच है, नेक्स्ट जो बैच बंच हमारे पास आएगा वो उसका लेवल क्या होगा हमको पता नहीं। सो दैट इज व्हाई एवरी ईयर वी हैव टू चेंज आवर मेंटालिटी, आवर वे ऑफ टीचिंग। जैसे हम रोल करते वक्त, हम जब रोल करते हैं तो हर स्क्रिप्ट नहीं आने पर हमारा प्रोसेस फिर से एक से ही शुरू होता है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि हमने 10 या 30 नाटक कर दिए। फॉर एग्जांपल सर ने 40 नाटक कर दिए, सर को आज अगर कोई स्क्रिप्ट फिर से देंगे तो ही हैज टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन। सो एवरी ईयर व्हेन यू स्टार्ट, डोंट थिंक दैट कि लास्ट ईयर मैंने सोशियोलॉजी पढ़ाई थी तो वो तो मैं पढ़ा लूंगी या पढ़ा लूंगा। स्टार्ट अफ्रेश, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमको थिएटर सिखाता है, दैट ड्रामा इज टीचिंग अस कि एवरी स्क्रिप्ट, एवरी कैरेक्टर हैज अ न्यू बिगिनिंग, राइट? सो ऐसे छोटे छोटे बदलाव अगर आप क्रिएट कर पाए, आप सोच पाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपके क्लास में जो भी बच्चा होगा वो उसको समझने में भी आसानी होगी और वो आप उसको बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाओगे। क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है कि वो क्लास में बहुत इनहिबिट, सर ने जो पहले बताया, इनहिबिशंस के साथ आता है, बहुत सारे इनहिबिशंस के साथ आता है। एंड एज ही प्रोग्रेस, एज शी प्रोग्रेस, वो इमिटेट करता है टीचर को। वो घर पे भी जाके बताएगा कि टीचर ने आज ऐसा किया, जैसा किया। तो वो, एंड दैट इज व्हाई दिस प्रोफेशन इज वेरी नोबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू शेप द सोसाइटी। इसीलिए हम भी जब थिएटर करते हैं तो सर ने जैसा कहा कि ये स्क्रिप्ट जो भी आपने देखी, हम करते वक्त हम भी ये सोचते हैं कि हम जो स्क्रिप्ट ले रहे हैं whether it is really going to serve a purpose or not, because without a purpose any script is not a good script. So same way, when you become a teacher and you teaching a subject, if it has some purpose, it has some meaning, then only it's going to serve a purpose. ये थोड़ा सीरियस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ कम टू द अगेन, हम आते हैं, अभी मैंने आपको बिगिनिंग में कहा था कि घड़ी इधर से उधर बांधो, या क्या फील हो रहा है आपको? व्हाट डू यू फील? क्या लग रहा है? अनकंफर्टेबल, अनईजी, और कुछ? सोचो कि एक छोटी सी बदलाव जो आपकी डेली रूटीन की अगर आप बदलते हैं तो क्या फील करते हैं? इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस इन योर पर्सनालिटी। क्योंकि थ्रू आउट द लेक्चर्स मैं जब भी बात कर रहा था, मैं ऑब्जर्व कर रहा था, बार बार वो जो चेंज है आपको कहीं परेशान कर रहा था इन बिटवीन, लेकिन वो छोटा चेंज कितना इंपॉर्टेंट हो गया। सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट स्मॉल चेंजेस ऑफ योर लेक्चर्स एंड योर सब्जेक्ट्स, कि वो छोटा चेंज क्या होगा। यहाँ हमने उसको उस तरीके से लिया कि आपको पता चला। सोचो कि आप तो रोज यही बांधते थे, अचानक इसमें बांध दिया। इट्स अ स्मॉल चेंज, किया कुछ नहीं, हमने सिर्फ घड़ी इधर से इधर बांधी थी। The same way you have to find out that small changes in your classrooms on a daily basis. Work out every day. मैं अभी कोई क्या बोलते हैं और एक्सरसाइज अभी हमने कर बताऊंगा, सर ने ऑलरेडी कराई है, लेकिन you have to find out. मैथ सिखा रहे तो उसकी क्या और गेम्स हो सकती है। यो बच्चों को खड़ा कर दिए, उनको बोलिए कि भाई आपको इवन नंबर्स बोलने हैं, उसको भाई जो फाइनल तक टिकेगा उसको एक चॉकलेट, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो वैसे आपको नए नए तरीके ढूंढने। थिएटर हैज so much of potentials of shaping the personality and improving your memory, at the same time your understanding, right? So वो छोटे छोटे चेंजेस को आपको रोज सोचने होंगे। आपको ऐसा नहीं है कि वो बैठे बैठे आ जाएंगे। हमारे इर्द गिर्द बनती चीजें, अभी रिसेंट एक ऐड बहुत फ्लैश हो रही है, मतलब मैं जैसे कहा कि मेरा ऑब्जर्वेशन हमेशा शुरू होता है वह जैसे एंटर हो जाता हूँ। एक पता है एक ऐड आ रही है जिसमें
आई थिंक वो ब्रिटानिया बिस्किट की है, आई थिंक सो, कि जिसमें बोलता है कि ये है नकली स्माइल, ये है असली स्माइल. सो दैट डिफरेंस, गुड डे, सो दैट डिफरेंस यू हैव टू क्रिएट, कि आपके बच्चे नकली यानी मैकेनिकली आपसे जुड़ रहे हैं या सही मायने में जुड़ रहे हैं. सो वो डिफरेंस आपको ढूंढना है बीइंग एन टीचर, कि ये मैकेनिकल स्माइल है या असली वाली स्माइल. राइट, सो दिस वे सी, मैंने जैसा कहा कि इट्स अ ह्यूज बहुत मतलब बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको एक आध घंटे में खत्म करना बहुत मुश्किल है. लेकिन दिस मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक दो चीजें ही ग्लिम्पसेस उसके समझाए. तो इस तरह से आप थिएटर को कनेक्ट हुए, इसको शार्प करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है. योर पर्सनालिटी गेट्स चेंज. ठीक है, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने नर्वसनेस का एक वो बोला था, उसके एक वो बहुत से कारण में से एक कारण ये था कि अचानक आप लोग दीवार फिल्म देखी है नहीं? दीवार फिल्म देखी है अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की. अचानक अमिताभ बच्चन की भारी आवाज में डायलॉग चल रहा है और खत्म होता है शशि कपूर, हाँ मेरे पास ऐसा लग रहा था मुझे सर की आवाज के बाद. सो दैट इम्पैक्ट, ठीक है, तो वो उनकी आवाज का एक अलग इम्पैक्ट है. अब ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी आवाज इतनी ही भारी होनी चाहिए, सबकी आवाज इतनी ही अच्छी होनी चाहिए. वो है तो आपका एडवांटेज है, आपके पास है, गॉड गिफ्ट है. लेकिन नहीं है तो आपको उसको कैसे कैलिब्रेट करना है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है, दैट यू हैव टू थिंक ऑफ इट. है ना, सभी टीचर्स की पर्सनालिटी एक जैसी नहीं होती. कुछ अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं, कुछ दूसरी तरीके से एक्सप्लेन, जैसे सर ने कहा, आपको ढूंढना होगा तरीका. एंड दैट इज व्हाट द इम्पोर्टेंट for being a teacher and being an actor. That's where we are same. अगर आपको कोई दिखाने की जरूरत હું માર્ગદર્શન પૂરું પાડું છું. નાટક ડિરેક્શન પણ રાકેશ મોદી સરે કરેલું. So it was well this character also again this જે તમે હમણાં જો આપને જો એક कैरेक्टर देखा, बेसिकली गुजराती में एक वर्ड है रतांगड़ा. रतांगड़ा मींस जिनको रात में नहीं दिखता है, दिन में दिखता है लेकिन रात में नहीं दिखता है, नाइट ब्लाइंड बोलते हैं उसको, राइट. तो दिस कैरेक्टर इज अ नाइट ब्लाइंड, उसको रात को नहीं दिखता है. बट द थिंग इज he doesn't accept कि उसको ऐसा नहीं दिखता है. So he tried to prove each and every moment कि I am fine, I know everything. So that is ये मिथ्या अभिमान, मिथ्या मतलब false अभिमान, right? So उस पर ये बहुत अच्छा नाटक है, आप पढ़ना, आपको भी बहुत मजा आएगी. It's a very beautiful play. So this character is again it was a very difficult challenge for me also, because I think since I entered into this field, first time I did this comic character, because comic character is very difficult. I always run away from this characters, I mean comic characters, because it's a very difficult character to perform. It's a very challenging, because comic character का ऐसा है कि आप कॉमेडी क्रिएट
करने की कोशिश नहीं करते, वो नेचुरली होनी चाहिए और उसका टाइमिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो दैट इज व्हाई दिस कैरेक्टर, मैं जब सर ने भी मुझे कहा था, आई वाज वेरी रिलक्टेंट एट द बिगनिंग वेदर आई वुड बी एबल टू आई मीन परफॉर्म इट और नॉट, बट सर ने बहुत मेहनत की एंड he gave me a lot in this role, and this role has given me a lot after performance. The appreciation and the things which I received from the audience, not only on the day of performance but even after the performance till date, everybody at particularly for that phase for six months and 1 year, so many people used to call me Jivram, right? So that character, they lived that character. So कहने का मतलब वही है, अगेन फिर से द थिंग इज यू हैव टू लिव द कैरेक्टर. सो द टीचर, it is again, it's a role you perform. When you enter into the class, you are into the role. That's what I want to repeatedly tell you. You are in role. So when you are in role, you personal identity, personal whatever you have, it is no space for those things. All right. So that is why that is very important. You have to feel that role. You have to live that role. You have to live that character. Unless and until you live, you won't be able to perform it perfectly. Right? I won't say that I did it very perfectly, but I tried well. Right? So you also have to try well. ऐसा नहीं हो सकता कि आप perfect हो जाओगे 100%. But if you try to be a role of a teacher, I guarantee you it will make a huge difference in your day-to-day classroom teaching. वो आने से पहले जो कुछ भी आप घर से निकले हो और क्लासरूम में पहुंचे हो, उस क्लासरूम के दरवाजे के बाहर जो कुछ भी हुआ है उसको आपको साइड में रख के आना पड़ेगा. You have to leave these things alone. As soon as we enter on that stage, we are no more a personal identity. We are the character. उसके बाद वो कैरेक्टर जो करेगा, वो कैरेक्टर जो कर सकता है, वो कैरेक्टर को जो करना है वही मुझे करना है, whether I am comfortable or not, because I accepted the role. And once I accepted the role, I have to take it challenge. I have to obey the requirement of the character, and that's what this theater, this drama is teaching you. Right? So thank you. I hope I tried my best in a small amount of time कि मैं आपको कुछ बता पाऊँ, कुछ दे पाऊँ. And this all, again, I repeatedly telling you, I'm just all because of sir. I was able to present this small thing in front of you. Thank you, Ranchod sir, Prakash sir, all of you. Thank you. Of all the members of Amity Parivar present here, on behalf of all the members of Amity Parivar present here, I extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers for today's program. Your insight on importance of drama in education were truly inspiring and enlightening. You beautifully highlighted meaning of drama, what it exactly means. You explained us how important loudness and modulation of voice is to control the crowd, basically for us, their students. Your exercise will definitely help us in understanding our students in a better way. I would like to thank Trilok sir for telling importance of observation, body posture, gestures, and to provide better insight to our students through various stories. We will surely take this topic in all the topics in the class after observing it properly and thinking critically about it. Now, I deeply appreciate all the valuable contributions from all of you to this training program. Once again, thank you, sir.